Let's start with summer 2019. Okay, paper 21. So antibody molecules are protein. We know that antibodies are produced by the plasma cells. ठीक है? Yes, ma'am. They are not produced by any other type of a B lymphocyte divide करते हैं and then they are going to produce plasma cells and that plasma cells are producing antibodies. और antibodies are basically glycoproteins in nature. ठीक है? और क्या स्ट्रक्चर होता है? ग्लाइकोप्रोटीन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. व्हाई? बिकॉज इट्स हैविंग 4 polypeptide chains, two lighter and two heavier, two lighter and two heavier. Okay, describe how figure 1.1 shows the secondary structure and tertiary structure of a molecule. Now if I'm going to see that, तो यहाँ पे मुझे secondary structure. Beta plated sheets? Yes, it's a very clear beta pleats. ये रहे. ठीक है? In a secondary structure. And some of the times I feel that there are helix as well. कहीं कहीं Yes, ma'am. Alpha helixes. yes, ठीक है. So this is showing that it's a secondary structure. ठीक है. फिर उसके बाद tertiary structure, how? Because it's a coiled and three-dimensional structure held with the bonds, है ना? Yes, ma'am. Yes. So this is going to be the tertiary structure, that it is coiled and it is showing a three-dimensional structure and it's going to be seen as a we can say that globular as well, right? Yes, ma'am. We can say alpha helix is it and beta pleats are visible. And we can say that how beta pleats as a polypeptide chain. थोड़ा सा इसको हम explain कर देते हैं कि polypeptide chain जो है वो folded है. ठीक है, to make pleats. ओके. और फिर उसके बाद आप इसको बताएंगे टर्शरी स्ट्रक्चर बिकॉज इट्स अ ग्लोबुलर फोल्डेड into three-dimensional structure, right? And held with the bonds. अच्छा, टर्शरी में एवरी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हम कहेंगे. ठीक है, क्योंकि एक चेन के बारे में बात करते हैं उसमें. ओके, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू से. आई डोंट नो अलीहा इज ज्वाइनिंग और नॉट. Okay, the next one is figure 1.2 is a transmission electron micrograph of a hybridoma cell. Hybridoma cell कैसे बनता है? जब monoclonal antibodies हम produce करते हैं by what? When the mouse is injected with a pathogen. Yes, mouse is injected with antigen और फिर इस antigen the mouse is producing immune response against it and the immune response will give us the B lymphocytes and the B lymphocytes further divide to give plasma cells and that plasma cells then fuse with the myeloma cell, Myeloma cancer cells cell. to make a hybrid Yeah. cell. Yes, to make a hybridoma cell. So this is basically a hybridoma cell, okay? The hybridoma cell in a figure 1.2 synthesizes and secretes molecules of monoclonal antibody. State the role of the structured label X and Y and the production of anti-molecules in the hybridoma cell. So the X is this one और ये लॉन्ग स्ट्रैंड्स हैं और ये आपको लगता है कि ये क्या है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक Reticulum रेटिकुलम है, है. and the other one is mitochondria. Yes, ठीक है. So mitochondria is involved in what is the role of the X? What do you think? Making, yeah, synthesizing प्रोटीन ATP. सिंथेसिस में इन्वॉल्व हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया इज गोइंग टू प्रोड्यूस एटीपी फॉर द वी कैन से दैट
metabolic reactions. यस, एंड वी कैन से दैट कि जो एंटीबॉडीज बनेंगी उनको एक्सोसाइटोसिस से बाहर भी तो निकालना है ना. Okay. The hybridoma method for the production of monoclonal antibodies involves a number of stages. One of these stages is formation of hybridoma cell. Outline a stage in which hybridoma cell are formed. We have already discussed that it is what? The injection of that antigen, है ना? Yes, ma'am. और उसके बाद the B lymphocyte is producing Taken plasma out from cell, the spleen. and then we Oh, fuse it with the कैंसर सेल myeloma का cells. फाइब्रोडोमा सेल. ठीक है जी. ठीक है. So this is how we are going to write down. We have already discussed them. Okay. Outline the use of monoclonal antibodies in the treatment of diseases. So can you answer me for this? To They can be locate used the, to locate the pathogen, sorry, the yes, antigens yes. through the gold foil particle thing that they attach to it, the radioactive. Yeah, we can say radi- that we are going to use the monoclonal antibodies to locate the pathogen by labeling the antibodies with the radioactive substance and passing through the blood and watching them, right? And when Yes, they ma'am. will And then bind it to the binds to complementary the antigen, yeah, so it which will tell will us that produce where is the the target. complementary antibodies. यस. ठीक है. और फिर उसके बाद हम कह सकते हैं और क्या है. We can even destroy the pathogen or the antigen with the help of this. Yes, ma'am. We can destroy the antigen with the help of the monoclonal antibodies. That is what artificial passive immunity. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. और this is also going to be one of that locating, finding out, diagnosing, and we can say that artificial passive immunity. Yes, ma'am. To kill the pathogen. Yes. ठीक है. और इवन वी कैन से दैट कि हम जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बॉडी के अंदर डालेंगे तो इट इज गोइंग टू ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स हाई. इट इज लोकेटिंग द एंटीजन एंड इट इज मार्किंग दैट एंटीजन. ठीक है. सो वी कैन से दैट लोकेटिंग एंटीजन. डायग्नोसिस भी इसी में आ जाएगा. दैट मार्किंग द एंटीजन. So stimulating immune response and treating the diseases, basically. That is artificial passive immunity. Okay. Yes, ma'am. Linoleic acid is an unsaturated fatty acid that is found in some triglycerides. एक मिनट मुझे पूछ लेने दे अलीहा से. Okay. Linoleic acid is an unsaturated fatty acid is the one which is having multiple bonds in Double the bonds. fatty acid chain, is found in some triglycerides and some phospholipids. Phospholipids are components of cell surface membrane. ठीक है. अच्छा जी, ये आपको उसने लिनोलेक एसिड की, yani it's a fatty acid chain and he has shown that this is the multiple bond, and where the multiple bond is, it is providing the kink or a bend in the chain. और अगर bent होगा तो it will make the phospholipid molecules not to be tightly packed, है ना.
Yes, ma'am. और अगर टाइटली पैक नहीं होंगे तो फ्लूइडिटी Decreased. Sorry, इंक्रीज increased. इंक्रीज करेगी. So the composition of the cell membrane of plant changes in response to change in temperature. At the start of the cold season, there is an increase in the proportion of phospholipid. सर्दियों में फॉस्फोलिपिड सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो जाएगा टू मेक द membrane fluid. Okay. The chickpea plants that do not make this change do not survive. Suggest how the increase in the proportion of the phospholipids with unsaturated fatty acids helps plants such as chickpea survive decrease in temperature. So when it was increasing the number of unsaturation or the percentage of unsaturation in the fatty acid chains, it will make the phospholipid molecules to have bent in the tail. And when it is going to have bent, so the tail of the phospholipid, since in the membrane there is a phospholipid bilayer, so the phospholipid molecules would not attach, or they're going to say what? They would not be closely packed together, and hence the fluidity increases. And this is how the plant is going to survive, by increasing the fluidity in the membrane, preventing it from freezing. Okay? Yes, ma'am. State why triglycerides and phospholipids cannot be described as polymers. Lipids को आप polymers नहीं कहते. They are heterogeneous. They are made up of two things. Hetero means different, made up of fatty acids and glycerol. So that's why they are not considered as polymers, क्योंकि ये heterogeneous हैं. Whereas polymers are made up of same repeating subunits that are monomers. सही है, ma'am. State two differences in the structure of a triglyceride and phospholipids. Phospholipids have both hydrophobic and hydrophilic R groups, while triglycerides only have hydrophobic Phospholipids one. have both hydrophobic and hydrophilic what? R groups. No, it's having both ends for hydrophobic and hydrophilic. R group की बात नहीं है इसमें. ठीक है, Okay. हम इसको Like पार्ट head कह and tail. सकते हैं. ठीक है, आर ग्रुप नहीं कहेंगे. इट्स कंसिस्टिंग ऑफ बोथ पार्ट्स, क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. एंड whereas the triglyceride is only hydrophobic. ठीक है. Okay. Yes. Head of the phospholipid is polar and tail is non-polar, whereas triglyceride is overall non-polar. ठीक है. फिर उसके अलावा triglyceride has three fatty acid chains. It is having two fatty acid chains. फिर उसके बाद it is consisting of phosphate group in the phospholipid, whereas there is no phosphate in this. It is non-polar, hydrophobic. It is both polar head, non-polar tail. Anything else you know about them? हम और कुछ याद नहीं आ रहा. ठीक है. बेसिकली एक और बात होती है, वो हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी बुक में इतना ज्यादा उसके बारे में नहीं बताया जाता, लेकिन मार्किंग स्कीम में वो लिख लेता होता है कि हमारे पास एक नाइट्रोजनस बेस होती है दैट इज इन द फॉस्फोलिपिड्स बट नॉट इन द ट्राइग्लिसराइड्स. ठीक है. Okay. यस. Platelets metabolize linoleic acid to produce a molecule known as thromboxane. लिनोलिक एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं और थ्रोम्बोक्सेन प्रोड्यूस करते हैं. थ्रोम्बोक्सेन इज रिलीज्ड बाय प्लेटलेट्स व्हेन ब्लड लॉस ऑकर्स. और ये मॉलिक्यूल तब रिलीज होता है जब ब्लड लॉस हो रहा होता है. अब थ्रोम्बोक्सेन एक्ट्स ऑन द. मैम thromboxane ligand होगा. लेट्स सी, मैंने भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा.
Muscle cells in the walls of the arteries. This causes arteries to constrict, which reduces blood flow. Explain why the constriction of the arteries following blood loss is an example of cell signaling. Yes, cell signaling molecule hai ye. It's a ligand, or we can say that it's a cell signaling molecule. Okay. So it would have the cells in the walls of the arteries. तो मसल सेल्स के ऊपर ये जाके अटैच करते हैं. तो सो डेफिनेटली द मसल सेल मेम्ब्रेन वुड हैव रिसेप्टर. So it will do complementary binding. It will do complementary binding. Okay. और जब ये Yes, ma'am. के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बाइंड करेगा तो फिर क्या होगा? स्मूथ G मसल्स protein. कॉन्ट्रैक्ट करेंगे. हम्म. अच्छा और मैम, हम वो नहीं बताएंगे पहले G प्रोटीन सिग्नलिंग आप कैस्केड बता वगैरह? सकते हैं. ठीक है. हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर व्हेन द मॉलिक्यूल इज अटैच्ड, फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल. ठीक है. आपकी मर्जी है, क्योंकि उसने आपसे इतना पूरा प्रोसीजर नहीं पूछा. इट्स ओके. यहाँ पे आके लगेगा थ्रोम्बोक्सेन, कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग करेगा. पहले सबसे आपको मार्किंग पॉइंट मिलेगा. कितने मार्क्स हैं इसके? 4 मार्क्स. एंड द फर्स्ट मार्किंग पॉइंट इज थ्रोम्बोक्सेन इज अ सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल. ठीक है. And second marking point would be that muscle cell in the wall of the artery would have receptor for the thromboxane. ठीक है. Third marking point says thromboxane will complementary bind to the receptor, activating the muscle cell through the help of, आप इसको सिर्फ इतना कह सकते हैं कि by activating a signaling cascade and signal amplification. ठीक है. यू कैन यूज अ टर्म्स, आप इतना बताने की जरूरत नहीं है. इसमें आप कह सकते हैं कि व्हेन इट बाइंड्स इट कॉजेज द मैसेज ट्रांसडक्शन. ठीक है. ठीक है। मैसेज ट्रांसडक्शन होगी. और उसके बाद यू कैन से दैट सिग्नल एम्पलीफिकेशन and signaling cascade happens, activating causes certain changes. ठीक है. which do which make the muscle cells to contract. Right. ठीक है मैम। यस, आप इसको इस तरह लिख सकते हो. ठीक है. क्योंकि ही इज सेइंग दैट इट्स जस्ट इन्वॉल्व्ड इन द कंस्ट्रिक्टिंग ऑफ द आर्टरी. सो यू मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्स में आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी. ठीक है. क्लियर? यस मैम। हम्म. अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर अलीहा इफ शी वुड कम. कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? क्वेश्चन 2 आई थिंक। वी आर डन विथ क्वेश्चन 2 बेसिकली. आई थिंक आ जाएगी बिकॉज़ इट्स 3:30 नाउ। आई होप. I don't know which class he has right now. Neutrase is an enzyme that is used to hydrolyze proteins in solution. Neutralize से है word neutrase जो hydrolyze कर रहा है proteins को. When the enzyme is mixed with a 2% protein solution. Protein के साथ, protein is a substrate. Protein is a substrate and सबस्ट्रेट। neutrase is an enzyme. The reaction mixture changes from white to colorless. This is product color. ठीक है. A student carried out an experiment to find out the effect of copper sulfate and potassium. What is it? Actually यहाँ पे ना Zoom पे वो आ जाता है. Potassium sulfate on the activity of neutrase. So potassium sulfate and copper sulfate are what? Biuret reagents. ठीक है. The student made 4 reaction mixtures in test tube A to D.
The test tubes A to C contains volumes of protein solution and 0.1 centimeter cube of copper sulfate potassium, दोनों उसने डाले हैं, प्रोटीन भी डाला है और बायोरेट रिएजेंट भी डाला है। और उसके अंदर उसने थर्ड वाले के अंदर उसने पानी डाला है और प्रोटीन डाला है, बायोरेट रिएजेंट नहीं डाला, राइट। 0.5 Yes, centimeter cube of 1% nutrients solution was added to test tube A and immediately placed in a colorimeter. अब पॉइंट उसने टेस्ट ट्यूब ए में एंजाइम डाल दिया है, दैट इज 1%, concentration of enzyme is 1% and the volume is 0.5 centimeter cube. और उसने टेस्ट ट्यूब ए में डाला और उसे कलरीमीटर में रखा। The colorimeter was used to measure the intensity of light that is absorbed by the solution over 100 seconds. कलरीमीटर का ये काम है, ये पास पेपर में क्वेश्चन भी है कि उसका क्या काम है। So you are going to write down, 23 का पेपर है शायद। The colorimeter जो है वो किस लिए यूज होता है कि एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट को देखता है कि कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है और उसको वो शो करता है। द प्रोसीजर वाज रिपीटेड विद अदर रिएक्शन मिक्सचर्स बी सी एंड डी। और उसने दिखाया आपको कि ए के ऊपर द A1 इज शोइंग एब्जॉर्प्शन शुरू से लेकर आखिर तक सेम ही रही है ना। yes, ma'am. थोड़ा सा ही है decrease. हाँ, और दूसरे में एब्जॉर्प्शन कम हो गई है, थर्ड में उससे कम और फोर्थ में उससे कम। और उसने सब में क्या डाला है, 1%। Nutrace. या ठीक है। और जो डी वाली है उसमें वाटर डाला हुआ है, तो वाटर डालने से आपने उसमें बायोरेट सोल्यूशन ही डाला। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ओवर 100 सेकेंड्स इज अ सूटेबल मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द एक्टिविटी ऑफ न्यूट्रेस। इसमें प्रोसीजर क्या हो रहा होगा, एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट को न्यूट्रलाइज करेगा, दैट इज प्रोटीन। जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो फिर आप अगर उसमें डालेंगे बायोरेट रिएजेंट तो कलर डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए या कम, कम हो जाना चाहिए ना। ज्यादा. Oh, प्रोटीन हाइड्रोलाइज हो जाएगा ना, तो एब्जॉर्बेंस कम हो जाएगी। okay. लेकिन एक चीज अगर आप नोटिस करें तो इनिशियली जो एब्जॉर्बेंस है वो ऑलमोस्ट सेम है ना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है ना। तो जो जो Yes. न्यूट्रिएंट्स है ये भी तो प्रोटीन है, Yeah, exactly. ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट लाइक एज मच डिक्लाइन इन द कलर एब्जॉर्बेंस, Trend राइट। of the graph. ठीक है, क्योंकि वो उसको भी तो कलर दे रहा है ना, एंजाइम को भी तो कर रहा है ना डिटेक्ट। बायोरेट ने तो ये नहीं कहना ना कि मैंने सिर्फ प्रोटीन ही देखना है, प्रोटीन तो एंजाइम भी है। आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. सो व्हाट डज इट डू, वो कहता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्रेक करेगा प्रोटीन को इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होगी क्योंकि कलर है ना। और उसने कहा है कि 100 सेकेंड्स के लिए ये हम क्यों कर रहे हैं, तो 100 सेकेंड्स इज अ रिलायबल टाइम जिसके अंदर आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिल सकते हैं, राइट। Yes, ma'am. So हम लिख सकते हैं कि it increases the reliability of the results. या इट गिव्स यू, मतलब 100 मिनट्स 100 सेकेंड्स आर अ गुड टाइम फॉर द रिजल्ट्स, ठीक है, टू गेट द रिजल्ट्स। With reference to figure 3.1, describe the effect of copper sulfate and potassium sulfate solution on the activity of nuclease. Potassium एक sulfate मिनट C एक वाला मिनट था. एक मिनट, कॉपर सल्फेट और पोटाशियम सल्फेट, इट इज नॉट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, सो इट इज नॉट अ बायोरेट रिएजेंट, ठीक है, Okay, ma'am. राइट। तो हम इसको दोबारा देखते हैं कि क्या हो रहा है कि इनिशियली व्हेन यू एडेड इन 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर सल्फेट एंड इन दिस बी कॉपर सल्फेट और सी में आपने पोटाशियम सल्फेट डाला है, राइट। Yes. तो दे आर नॉट एज, मैंने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड समझा था, सो इट इज नॉट एन बायोरेट रिएजेंट, सो दे आर एक्टिंग एज, ये वाला कॉपर सल्फेट का कोई इफेक्ट है उसकी एक्टिविटी पे, परसेंटेज एब्जॉर्प्शन उतनी की उतनी ही रही है तकरीबन, ठीक है। बी के अंदर जब आपने कॉपर सल्फेट कम डाला है तो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन डिक्लाइन कर गई है।
और सी में जब आपने पोटाशियम सल्फेट 0.01 डाला है तो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन और कम हो गई है। तो उसने कहा था कि इनिशियली जो सबस्ट्रेट है वो कलर्ड है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होएगी, और जब वो कलरलेस हो जाएगा तो एब्जॉर्प्शन लेस हो जाएगी। ठीक है, Yes, ma'am. राइट? सो आई मिस इंटरप्रेट दैट। कलर्ड में एब्जॉर्प्शन मोर एंड इन कलरलेस एब्जॉर्प्शन लेस। सो इनिशियली इफ इट्स अ सबस्ट्रेट तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा, और जब एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट बन गई है, ज्यादा प्रोडक्ट बन गई है। तो जब 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर सल्फेट वी हैव एडेड, सो इट शोज दैट कि कॉपर सल्फेट इज एक्टिंग एज एन इनहिबिटर ऑफ एन एंजाइम, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन इतनी कम नहीं हुई। राइट? Yes. देन जब हमने 0.01 कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाला तो उस वक्त क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन कम हो गई, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बन गई। Yes, ma'am. मैम सी में पोटेशियम सल्फेट यूज करके इतना कम क्यों आ रहा है? आप एक सेकंड दोबारा बता देंगे? पोटेशियम सल्फेट भी इनहिबिटर इतना ज्यादा इनहिबिशन नहीं कर रहा। ठीक है, इनहिबिटर कौन ज्यादा Okay. कर रहा है? कॉपर सल्फेट। इफ द अमाउंट ऑफ द कॉपर सल्फेट वाज मोर तो एंजाइम काम नहीं कर पा रहा था। जब आपने कॉपर सल्फेट के अमाउंट को कम किया तो एंजाइम ने काम किया, और परसेंटेज एब्जॉर्प्शन आप देखो इनिशियली, इसका मतलब ये कंपैटिटिव इनहिबिटर है, इनिशियली उसने फाइट किया उसके साथ और फिर उसके बाद वो खुद ही सबस्ट्रेट बाइंड कर गया और वो कलरलेस हो गया, और परसेंटेज एब्जॉर्प्शन क्या हो गई? कम हो Decrease. गई। मैम जी क्या बोलो। पोटेशियम सल्फेट नॉन competitive है? एंड सिंस देयर इज नो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म, इसलिए इसकी absorption बेटे कम है? नहीं नहीं, पोटाशियम सल्फेट ने, आप देखें कि 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब पोटाशियम सल्फेट डाला है तो रिएक्शन कंटिन्यू रहा है और मैक्सिमम प्रोडक्ट बनी है। ये प्रोडक्ट का सिंबल है कि मैं जब कलरलेस होगा और एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाएगी तो प्रोडक्ट क्या है? ज्यादा बन रही है। Maximum. ठीक है, आर यू गेटिंग मी? तो वो आपसे Yes, ma'am. पूछ रहा है इनका सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट का इफेक्ट। तो हम कहेंगे कि कॉपर सल्फेट का ज्यादा एविडेंट इफेक्ट है। जब 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कॉन्सेंट्रेशन थी तो उसने प्रोडक्ट नहीं बनने दी और कलरलेस नहीं हुआ और एब्जॉर्प्शन उतनी ही रही। ठीक है, मैं मतलब बहुत कम डिक्लाइन आया उसमें। और जब 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो कॉन्सेंट्रेशन रखी हमने कॉपर सल्फेट की, तो एंजाइम ने एक्टिविटी की एंड इट डिक्रीजेस द कलर, और इट वी कैन से दैट इट चेंजेस द कलर टू कलरलेस, and it has converted it to colorless, and the percentage absorption has been declined, right? और जो पोटाशियम Yes, ma'am. सल्फेट है इट हैज अ मोर एविडेंट इफेक्ट। क्यों? उसमें लगता है कि उसका कोई रोल नहीं है। उस वाले में जिसमें हमने पोटाशियम सल्फेट डाला है उसमें पोटाशियम सल्फेट का बहुत लिटिल इफेक्ट शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि परसेंटेज एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो गई है। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट बनी है, इसका मतलब है कि न्यूट्रिएंट्स अपना काम कर रहा है। तो पोटाशियम सल्फेट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन इनहिबिटर, वेयर एज कॉपर सल्फेट इज एक्टिंग एज एन इनहिबिटर। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? Yes, ma'am. So potassium sulfate में ज्यादा प्रोडक्ट है ना? हाँ, बेसिकली उसने Okay. कहा था कि वो कलर्ड से कलरलेस हो रहा है ना। Yes. ठीक है, तो जब वो कलरलेस हुआ तो कलर्ड में परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है, राइट? अस्सलाम वालेकुम इल्हाम। Yes. और कलरलेस में परसेंटेज एब्जॉर्प्शन कम होएगी। Walaikum assalam. I'm so sorry. इट्स Time ओके बहुत इल्हाम। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी है, आई विल मेक अ गूगल ड्राइव लिंक तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, राइट? Thank you so much. Thank you. सो जो कलरलेस है उसके अंदर परसेंटेज एब्जॉर्प्शन जो है हम कहेंगे कि वो मिनिमम होगी, राइट? और नो Yes, एब्जॉर्ब। ma'am. सो जब न्यूट्रिएंट्स एक्टिविटी करेगा तो उस वक्त क्या होगा?
कि इट विल चेंज फ्रॉम कलर टू कलरलेस। तो अगर न्यूट्रिएज अपना काम कर रहा है तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम से मिनिमम पे आ जाएगी। तो अगर आप पोटाशियम सल्फेट में देखें तो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम से मिनिमम में आ गई है, जस्ट लाइक एज इन वाटर। ओके। Okay, ma'am. यस। सो द वाटर एंड द पोटाशियम सल्फेट हैज द सेम इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि पोटाशियम सल्फेट हैज नो और लिटिल इफेक्ट ऑन द enzyme activity, whereas copper sulfate is acting as an inhibitor, so inhibiting the enzyme activity and does not changing the product and does not changing the substrate into the product, as the color is not becoming colorless and the absorption remains almost same। ठीक है। फिर उसके बाद Yes, आता है न्यूट्रिएंट्स कैन बी इमोबिलाइज्ड इन एल्जीनेट। याद रखिए कि जब इमोबिलाइजेशन करते हैं तो द केमिकल वी यूज इज गोइंग टू बी इनर्ट, इनसॉलेबल। ओके। जो भी केमिकल आप यूज करेंगे फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ एन एंजाइम के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज में है कि वो इनर्ट यानी नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और इनसॉलेबल होना चाहिए। Is used in the food to produce foods with high nutritional content. Explain the advantages of using immobilized enzymes such as nutriase। क्या advantages हैं? It does not affect the enzyme, the external conditions are not going to affect the enzyme activity, है ना? yes, ma'am. और Aliha, do you have a regular class at this time? यस मिस, वो आज थोड़ी लेट हो गई थी इस तरह से। Okay. Otherwise, it would end at 3, right? या इट वुड। Okay, inshallah. Okay. So external conditions like temperature changes and pH changes would not affect the enzyme activity। ठीक है। उसके अलावा आपके पास आ जाता है कि the product is not going to be contaminated with enzyme। The enzyme can be reused as well. Yes। Oh, and it also reduces, I guess, inhibition of the Yes, we can inhibitors. say। Is it clear, Aliha? यस मिस। Less contamination, we can say that stability of the enzyme। ठीक है। और जब स्टेबिलिटी ऑफ एंजाइम ज्यादा होएगी तो हम कह सकते हैं कि उसकी लाइफ स्पैन यानी शेल्फ लाइफ, किसी केमिकल की लाइफ स्पैन को शेल्फ लाइफ कहते हैं, तो वो भी ज्यादा हो जाएगी। उसको हम रीयूज कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट को कंटेमिनेट नहीं करता। दीज आर द immobilizations। अच्छा जी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट सच एज शूट टिप्स। जो ग्रोइंग रीजन होते हैं वहां पे आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मिलते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव अ सिमिलर रोल टू द स्टेम सेल्स इन एनिमल्स। ये माइटोटिकली ग्रो करते हैं, ये माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, दे डू माइटोसिस। ओके। इंक्रीज इन लेंथ, शूट टिप पे हैं तो लेंथ इंक्रीज होगी। शो सम ऑफ द स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मेच्योर फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल फ्रॉम अ मेरिस्टेमेटिक सेल। यानी ये भी एक एज ए स्टेम सेल एक्ट कर रहे हैं। और स्टेम सेल का क्या काम होता है? स्टेम सेल डिवाइड करता है टू गिव वन ऑफ द स्टेम सेल एंड वन ऑफ द स्पेशलाइज सेल। स्टेम सेल डिवाइड करता है माइटोटिकली और दो सेल्स देता है, एक माइटो एक स्पेशलाइज सेल होता है और एक वापस स्टेम सेल ही होता है। ठीक है। तो जो स्पेशलाइज सेल होता है इट इज फॉर द डिफरेंट फंक्शंस एंड दे आर डिवाइडिंग बाय माइटोसिस। So meristematic cell divide and gives us the two cells by mitosis। One of them is going to be dividing into a plant cell, आप देखें, और वो फिर further divide कर रहा है to give us two cells। ठीक है। और उसने कहा है कि ये sieve tube और companion cell दे रहे हैं। कौन से सेल? sieve tube and Companion. yes। Okay। सो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल्स आर मेड। ये वही चीज है जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टेम सेल डिवाइड करता है तो एक स्टेम सेल बनता है और एक स्पेशलाइज सेल बनता है। तो यहाँ पे भी ये स्टेम सेल बन गया
और ये जो है ये फर्दर F जो है it divides into a plant cell and then this plant cell further divide to make sieve tube and companion cell. ठीक है, यानी मैचुरेशन हो रही है। और अगर आप देखें तो सीव ट्यूब का जो इनर कंटेंट है वो कम हो जाएगा और साइटोप्लाज्म वुड बी ऑन द पेरिफेरी विद नो न्यूक्लियस। सीव ट्यूब के अंदर, सीव ट्यूब एलिमेंट के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इनिशियली जब वो बन रहा था तब उसमें न्यूक्लियस था, लेकिन जब मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट बन गया तो उसमें न्यूक्लियस नहीं है ना ही, और पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है। और ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये दो कंपेनियन सेल्स हैं। Cell E and F in figure 4.1 are daughter cells produced when the meristematic cell divides in the shoot tip. Explain why it's important that one of the daughter cell is a meristematic cell so that it can be again, अगर आप meristematic cell से सारे specialized cell ही बना देंगे तो फिर बाकी stem cell कहाँ रह जाएंगे या meristematic cell कहाँ बचेंगे, है ना? तो जब कभी Yes, स्टेम ma'am, सेल सही या है. मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है तो वो एक वापस स्टेम सेल देता है और दूसरा वो स्पेशलाइज सेल देता है। ठीक है, तो ताकि जो shortage ना हो. yes, so that it can always be having the stem cells or the meristematic cells. ठीक है, Yes. वो ये ना हो कि सारे मेरिस्टेमेटिक सेल्स और स्टेम सेल्स जो है वो स्पेशलाइज सेल बना देंगे तो फिर आगे फर्दर डिवीजन कौन करेगा? सो द फर्दर डिवीजन और वी कैन इंश्योर दैट द मेरिस्टेमेटिक सेल्स रिमेन्स ओवर देयर। तो इस वजह से जब कभी वो स्टेम सेल या मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करता है तो वो दोबारा एक वही बनाता है और एक स्पेशलाइज सेल्स बनाता है। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है कंप्लीट टेबल 4.1 टू डिस्क्राइब द चेंजेस दैट आर शोन इन फिगर 4.1 बिटवीन स्टेजेस एफ एंड जी, जी एंड एच एंड जे। तो एफ और जी के दरमियान आप बताएं पहले क्या हो रहा है? कि सेल इलोंगेट हुआ है, लंबा हो गया ना सेल, Yes. सेल इलोंगेटेड एंड द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल। Vacuole. ठीक है, फिर जी और एच के दरमियान क्या हुआ है? यस गर्ल्स, Companion cell. ये सेल डिवाइड किया है इनटू टू सेल्स विद टू न्यूक्लियस, ठीक है, एंड वन वैक्यूम, राइट? Yes. और अलीहा एच और जे में क्या हो रहा है? एच से जे में क्या हो रहा है अलीहा? 8 से J में miss 1 second. इट इज द मैचुरेशन, इट्स द मैचुरेशन, मेच्योर हो रहे हैं वो, ठीक है। Okay. और जब वो मेच्योर हो रहे हैं तो एक के अंदर जो है वो वैक्यूल और न्यूक्लियस गायब हो गया है टू मेक इट अ सीव ट्यूब एलिमेंट, और दूसरे के अंदर क्या हुआ है? कंपेनियन सेल मेच्योर होके बन गया है, न्यूक्लियस रह गया है उसमें भी, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, explain how the structure of a mature sieve tube element is related to its function. Can you tell me? The mature sieve tube element is related to its function. Sieve tube element का क्या काम होता है? Flow of the phloem sap. So it has peripheral cytoplasm. Okay. And ma'am, elongated cells to form Okay. Yes. the tubes. Yes. End to end join कर रहे हैं, उनमें sieve plate है, sieve